Okay. Now come to the next point of Active Directory domain services, which is domain infrastructure role and responsibility, like role and responsibility of DC and CDC, ADC, then RODC, of course. Okay. So DC is a root domain. A root domain. It is a root domain. और रूट डोमेन है तो मतलब कि हमारा मेन सर्वर होता है, और बोल सकते हैं टॉप लेवल डोमेन इन द एक्टिव डायरेक्टरी. ओके. और इट इज द फर्स्ट डोमेन इन द डोमेन इन्वायरमेंट. रूट डोमेन प्ले a crucial role in the management and structure of active directory domain environment. Like it it is a top level domain, our first server over a domain environment. Okay. And it maintain forest wide trust, naming context, FSMO रोल. इसके पास ये सारी चीजें होती हैं, और ये सारे डोमेन्स के डेटाबेस को मैनेज कर सकता है, ग्लोबल कैटलॉग को हैंडल करता है, सिक्योरिटी पॉलिसी डिप्लॉय कर सकता है, हाई अवेलेबिलिटी और अदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को मैनेज कर सकता है. तो ये तो हमारा ठीक है, मेन सर्वर है, हर तरीके का काम कर सकता है, किसी भी डोमेन को सर्च करके किसी भी डोमेन के एक्सेस करके उसके डेटाबेस में मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, ये सब है. बट CDC इज अ hierarchical domain, or it's a hierarchy or part of hierarchy for a specific domain infrastructure. तो CDC हमारा क्या होता है, हमारे डोमेन का एक हायरार्की डोमेन होता है. ओके. चाइल्ड रिलेशनशिप हमारा होता है. सो CDC मेंटेन ओन or it has complete permission to maintain the own database. Okay. Or within site or within location, it maintain everything. It maintain user groups, computers, account related services, create and manage user groups and many things, deploy policy for user groups and computers. So depend different things can manage by CDC server. And we can expand our domain infrastructure through child domain controller on different locations also, right? But child domain controller, like child domain controller, handle the traffic for root domain or other domain environment, right? So it maintain trust relationship, security control, administrative delegation. We can transfer FSMO from this to this. Okay. Okay. So we can handle these all things. Child domain controller can read the database of Active Directory domain service or for root level domain. It can check the database of users. It can check the database of groups by default. Okay. Computers. But CDC domain have no authority to maintain or to modify the any database on top level domain or for top level domain. But top level domain can modify everything for child level domain. By default, they have permission to maintain and modify the database and object environment for child domain controller. Okay. And then additional, we can manage ADC, additional domain controller. Additional domain controller we have for redundancy. एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है भाई, इसी की एक कॉपी हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम रेडंडेंसी मेंटेन कर पाए. ओके. रेडंडेंसी, मेंटेन लोड बैलेंसिंग, लोकल ऑथेंटिकेशन, ओके, एंड फॉल्ट टॉलरेंस, बैकअप. in the absent of or in the like downtime of DC, ADC can handle the traffic for user environment, can maintain the environment for Active Directory database.
ये एक शैडो सर्वर है, कॉपी सर्वर है। तो अगर हमारा डीसी डाउन भी हो जाता है तो उसकी जगह पर ये काम कर रहा होगा, ये प्रॉपर सर्विसेज यूजर को दे रहा होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी नई एक्टिविटी कुछ करने की बारी आएगी, देन हमें हमारे रूट सर्वर का होना जरूरी है, क्योंकि इसी के पास वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो नए लेवल के चेंजेस होते हैं। बट ऑलरेडी जो हमारे इन्वायरमेंट इकोसिस्टम है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके पास उसका पूरा डेटाबेस है, रेप्लिके रेप्लिका है। और ये जो भी यूजर्स सर्विसेज ले रहे हैं, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स, उनको ये सर्विसेज देता रहेगा। क्लियर है? अनदर डोमेन इन्वायरमेंट यहाँ पर आ जाता है, जो कि हम एज आरओडीसी नेम से जानते हैं। एंड आरओडीसी हमारा प्लान क्यों किया जाता है? फॉर सिक्योरिटी ऑफ लोकेशन, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। इसके पास सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन होती है, रीड ओनली की। ये डेटाबेस में किसी भी तरीके का राइट नहीं कर सकता, नो राइट परमिशन। सो फॉर कैश क्रेडेंशियल रेप्लिका, ओके, और फॉर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट, ओके, ये सारी चीजें करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर डिफरेंट डिफरेंट टास्क वी कैन हैंडल थ्रू दिस, ओके। ये स्क्रीन विजिबल है सबको, ये जो मैं डायग्राम नोट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला? जी सर। जी सर, दिख रहा है। ओके। तो यहाँ पर आरओडीसी के इन्वायरमेंट में थोड़ा सा क्वेश्चन ये होता है कि आर जब डीसी है, सीडीसी है, डीसी है, तो रीड ओनली डोमेन क्यों बनाते हैं, आखिर क्या जरूरत है? ओके, ये क्वेश्चंस हमें इंटरव्यू और इसमें देना पड़ सकता है। ओके, तो पहला रीजन हो सकता है सुरक्षा या सिक्योरिटी। फर्स्ट रीजन इज सिक्योरिटी ऑफ डोमेन। ओके, जहां पर मान लिया कि कोई ऐसी साइट है जहां पर हमारे पास उतने एडवांस लेवल की सिक्योरिटी नहीं है, बट वहां एक डोमेन लगाना जरूरी है। ये कोई ऐसा साइट है जहां पर हमें एडवांस सिक्योरिटी या फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है, बट यस वहां पर एक सर्वर चाहिए, तो हम लोग आरओडीसी प्लान कर सकते हैं। अगर आरओडीसी कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है, जैसे फायरवॉल नहीं है, अदर सिक्योरिटी लेवल के अप्लायंसेस नहीं है, बट वहाँ एक हमने डोमेन अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के हिसाब से सेटअप करना है, तो आरओडीसी बना दो। आरओडीसी सारी चीजें करेगा, बट राइट की परमिशन नहीं है, तो ये लिमिटेड चेंजेस कर सकता है। ऑथेंटिकेशन और इन सब काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बट ये कोई नया डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन, नया डेटाबेस नहीं प्रिपेयर कर सकता। तो ऐसे डेटाबेस या ऐसे इन्वायरमेंट में हम लोग आरओडीसी को सिंपल ब्रांच ऑफिस वगैरह कोई है ऐसा, कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आरओडीसी कॉम्प्रोमाइज भी हो जाएगा तो क्रेडेंशियल हमारा चोरी नहीं होगा, क्रेडेंशियल्स हमारा हैक नहीं होगा, क्योंकि आरओडीसी डोमेन इन्वायरमेंट डज नॉट स्टोर क्रेडेंशियल्स। इसीलिए अगर आरओडीसी हमारा कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है तो नेटवर्क में हमारे डोमेन में कोई खतरा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि इसके पास ओनली रीड इंफॉर्मेशन है। राइट? क्लियर है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। कोई भी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आ रही है, ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट आ रही है फॉर यूजर, फ्रॉम यूजर और अदर ऑब्जेक्ट, तो ये उसको हैंडल कर सकता है। बट डायरेक्टरी के अंदर किसी भी तरीके का रेप्लिक लाइक मॉडिफिकेशन रिलेटेड रिक्वेस्ट है तो वो नहीं कर सकता। ओके, ये सारी चीजें। रीड ओनली डोमेन हम लोग ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, इससे सिक्योरिटी भी हमारे डोमेन की रहती है और हमारी क्वेरी भी जल्दी से सॉल्व होती है, मीन्स हमारे डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं। और सिलेक्टिव डेटाबेस रेप्लिकेट होने के वजह से नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक भी कम रहता है आरओडीसी पर। एज ए बैकअप सर्वर के बिहाफ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, ओनली बैकअप के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जब जरूरत पड़े तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं और सारी चीजें। तो अलग अलग साइट पर हम डीसी, सीडीसी, एडीसी, आरओडीसी, ये सभी डोमेन इन्वायरमेंट प्रिपेयर करते हैं, प्लान करते हैं।
राइट। अब अगर हम लोग यहाँ से एक डोमेन प्रिपेयर करने की बात करें या एक डोमेन डीसी इंस्टॉलेशन की बात करें, तो स्टेप क्या है, कैसे हम लोग डीसी सीडीसी एडीसी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो भी चीजें हम लोगों ने थ्योरेटिकली देखा, इसका पूरा प्लानिंग करते हैं थ्रू प्रैक्टिकल। ओके। तो सिंपल हमारे पास अभी सर्वर मैं ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक यस दिस वन। हमारे पास सर्वर है और मैं इसको लाइव करता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं कोई भी वर्जन में इस्तेमाल कर लूँगा। मेरे पास सर्वर 2025 के सर्वर हैं। तो मैंने यहाँ से एक फर्स्ट सर्वर अपना ले लिया। तो सीडीसी भी हम लोग आज ही बना लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है रूट सर्वर। अभी रूट नहीं है, ये सिंपल एक कंप्यूटर मशीन है, एक डोमेन है। ठीक है। हो कि सब लोगों ने अपना एक सर्वर इंस्टॉल करके रखा होगा, या एक आधा और अगर इंस्टॉल करना होगा तो वो भी रख सकते हो आप। है ना सबके पास? तो ये कुछ डेटाबेस वगैरह अपना मेंटेन कर रहा है, आई थिंक। दिस इज माय अनदर सर्वर। लेट मी रिबूट द मशीन फोर्सफुली। ओके। एंड आई थिंक लास्ट में हमने अपडेट में लगा दिया था ना, ये पूरा अपडेट हो गया था और ये उसी को वो कर रहा है। सो इट इज मैंडेटरी and prerequisite to update your server completely, okay, before installation of Active Directory domain services. Yeah, this one is my domain server, okay. And there is no any services installed in my server. I'm going to set up as a DC controller or domain controller our first root server, our top level domain for this machine, okay. It is very very important to set up IP address, change your computer name, okay, on your server. So this is root server. आप कोई भी नेम दे सकते हो, DC1 DC2 as per detail. And there is two NIC card, Ethernet 0, Ethernet 1. Let me open both NIC card and let me down second one, because there is no requirement of second Ethernet card, and this is Ethernet 0. And let me plan IP address as per theory. तो theoretical मेरा क्या था कि एक IP address 0.100 मैंने दिया, एंड प्रीफर्ड डीएनएस मींस प्राइमरी डीएनएस मैंने यही सर्वर दे रखा है, एंड दिस इज माय राउटर आईपी। यू कैन अप्लाई राउटर आईपी, इधर यू कैन इग्नोर इट, ओके। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट योर सर्वर विद पब्लिक डीएनएस, you can use Google DNS like 8.8.8.8, or you can just check ISP DNS, your local ISP DNS, okay. But right now I want to set up this IP as this server as a DNS server, okay, क्योंकि हम लोग डीएनएस भी प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये मैंने जस्ट इसको यही आईपी कॉन्फ़िगर किया।
Now I'm ready to configure Active Directory domain services. Okay, so what is the first step? So I think, yeah. So let me refresh the complete dashboard. I think yeah, it is refreshing. ये थोड़ा समय लेता है, सर्वर पर बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करेंगे। पता नहीं ये क्या रिफ्रेश कर रहा है, अभी तो कुछ इंस्टॉल भी नहीं हुआ है। ओके, नो वरी, हम लोग नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉलेशन यहाँ से रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन का स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो अपडेट जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा फाइनली आप इसको, या कुछ ये सर्विसेज हैं जस्ट आप इन सबको आप स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। एंड अपडेट हो जाने के बाद फाइनली ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ से आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करना है। डीसी बनाना हो, सीडीसी बनाना हो, एडीसी बनाना हो, कोई भी सर्वर का वो हो, आपको इसी को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ये बोलेगा कि ये सब हमारे डिपेंडेंसी सर्विसेज हैं जो कि एडी के साथ इंस्टॉल होंगे। तो ठीक है, होने देते हैं। ऐड फीचर में कर देंगे, वो सब एक्स्ट्रा फीचर थे तो उनको जरूरी ऐड करना। नेक्स्ट करेंगे, फाइनली नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यस करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हमारा अभी सर्वर नहीं बना, ये जस्ट एक रोल इंस्टॉल हुआ है जिसके बिहाफ पर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सर्वर डेटाबेस क्रिएट करेंगे।
ओके, तो इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। देन यहीं से आप प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर क्लिक करेंगे। एंड यस, जो फर्स्ट ऑप्शन नीचे से है ना, ये डीसी क्रिएट करने के लिए होता है। सेकेंड वाला आप सीडीसी क्रिएट कर सकते हो। और यहां से आप एडीसी एंड आरओडीसी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। मैं सबसे बॉटम ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और कह रहा है कि रूट डोमेन का नाम बताओ। तो मैं देना चाहता हूँ सीखो लाइव डॉट लोकल। ठीक है। एंड नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल ये सब पूछ रहा है, तो ये आप एटलीस्ट अपना प्रीवियस अगर कोई सर्वर इसके साथ इंटीग्रेट या रन करना चाहते हो तो उसको ले सकते हो, कि इस लेवल तक के जितने भी सर्वर हैं इस वर्जन तक के वो फंक्शनल लेबल रहेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी 25 एबव वर्जन या यही सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप एज इट इज रख रहने दो। और इसका एक नया पासवर्ड यहाँ पर दो। आप ये अपना एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड भी दे सकते हो। और फाइनली आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना। इसके साथ डीएनएस देखो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट करना है। नेट बायोस नेम में आपके डोमेन नेम का पहला जो वर्ड होता है वो नेट बायोस नेम बन जाता है। तो सीखो लाइव यहाँ पर नेट बायोस नेम मीन्स नेटवर्क सर्च में सीखो लाइव आएगा। और फाइनली नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा डेटाबेस है एनटीडीएस और सिसवॉल। सी विंडोज डायरेक्टरी के अंदर सिसवॉल और एनटीडीएस होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस स्टोर करने के लिए। ये भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। स्क्रिप्ट वगैरह चाहिए पावर सेल की तो आप ये पूरी स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हो और पावर सेल ओपन करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दो बस। आपका ये पूरा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कमांड से बन जाएगा। देखो, पेस्ट एनीवे हो गया। जस्ट आपको पासवर्ड देना है और एंटर कर देना। आपका पूरा पावर सेल की कमांड से एडीडीएस बन जाएगा। आप यहाँ कोई चेंजेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। हम लोग पावर सेल तो पढ़ नहीं रहे हैं तो यहाँ से जस्ट नेक्स्ट कर देंगे और ये डीसी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ इशू है यहाँ पर। क्या इशू है? कह कि वेरिफिकेशन ऑफ प्री रिक्विजिट्स फॉर डोमेन कंट्रोलर आर प्रमोशन फेल्ड, रोल चेंजेस इन प्रोग्रेस इन द कंप्यूटर नीड्स टू बी रीस्टार्ट। ये वही है कि हम लोगों ने जबरदस्ती इसको शट डाउन कर दिया था ना, तो अब ये कह रहा है कि उसी वजह से ये मनमानी कर रहा है और काफी समय से ये, या एक टाइम टेकन प्रोसेस कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। अपडेट एंड रीस्टार्ट, पता नहीं है कितनी देर से अपडेट और क्या लगा हुआ है, इट्स इरिटेटिंग मी। हो जाने देते हैं भाई।
तो कंप्लीट ये अपडेट वगैरह हो जाने के बाद आप इसको दोबारा से ट्राई करेंगे। आपका इशू नहीं आएगा, मेरा अपडेट का वही इशू था, राइट? तो ऐसा आ जाता है। सर्वर में पेशेंस के साथ काम करें तो बेटर है। अब ये प्री रिक्विजिट की चेकिंग कराए कि कोई भी और दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑल पास का मतलब सब कुछ ओके है, और इंस्टॉल नाउ पर आप क्लिक करके कंटिन्यू कर दो। तो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का इंस्टॉलेशन हो गया। अब ये विद इन मिनट आपका सर्वर इंस्टॉल कर लेगा, एडीडीएस को रिबूट कर लेगा। आप इसके अंदर यूजर ग्रुप्स, कंप्यूटर, ओयू, साइट सब बना सकते हो, राइट? तो आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे, कल हम लोग इसके साइट्स और सारी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अ, जो समय बचा है उतने समय में हम लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी बहुत समय लगेगा। तो सबको क्लियर है, समझ में आया कैसे इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें होंगी? हेलो। यस। वीडियो वगैरह देखकर अगर कहीं डाउट होता है तो उसको आप मैनेज करना। कल हम लोगों का इंस्टॉलेशन एक साथ हो जाएगा, सीडीसी एडीसी सारी चीज़ों का, राइट? और फिर एक साथ कंपैरिजन देखेंगे। मोबाइल वगैरह में चाहे यूट्यूब ऑन करो या कुछ भी, पहले रील का सेक्शन ही आ जाता है। ओके, तो ये रिबूट हो जाएगा, देन हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको होने देते हैं या समय लेगा? ठीक है, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इसके आगे।